افغانستان میں فوجی انخلا اور طالبان کی حکومت سازی کے بیچوں بیچ کابل ایئرپورٹ کے نزدیک زوردار دھماکہ، کئی مقامی اور امریکی فوجی جاں بحق، اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس طلب، بھارت سمیت دیگر ممالک کی تشویش۔ قومی شاہراہ رامبن میں ٹریفک ٹھپ، مقامی لوگوں کا احتجاج جاری، پولیس اہلکار پر بدسلوکی کا الزام، رد عمل میں عوامی تحفہ، سڑکوں پر احتجاج لگاتار جاری، قومی شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل متاثر۔ اور شہر سری نگر کا سری نگر میونسپل کارپوریشن عملہ ہونا نہ ہونے کے برابر، گراؤنڈ زیرو پر غیر مؤثر، کئی جگہوں پر کوڑا کچرا جمع، کتوں کی ہڑبونگ نے شہریوں کے حقوق چھیننے کی کوششیں کی، پالیتھین کا استعمال، ایس ایم سی پر لوگوں کے الزامات برابر جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ دوپہر کے اردو خبرنامے میں اپنے میزبان ترجم الاسلام کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ملک بھر، دنیا بھر اور جموں کشمیر کی چند اہم خبریں شامل ہوں گی، لیکن شروعات کرتے ہیں ابھی تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ۔ افغانستان میں کابل ایئرپورٹ کے نزدیک زوردار دھماکے کے بعد بین الاقوامی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بھارت سمیت کئی ممالک فکر مند ہیں اور اپنے شہریوں کی وطن واپسی کے حوالے سے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے بیان کو جاری کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ شرپسند عناصر ملوث ہوں، تاہم انہوں نے طالبان کے رول کو یکسر مسترد کیا، کہا کہ اس طرح کی کوششیں حکومت سازی کے دوران کوئی بھی پارٹی نہیں کر سکتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جو اقوام متحدہ کے ممبر ہیں اور ان کا اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے۔ بھارت سمیت کئی ممالک نے اس حملے پر زبردست تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ کابل، افغانستان اور آس پاس میں جس وقت افغانستان کی حکومت گر گئی تھی اور کابل کے آس پاس کے علاقوں میں تقریباً 100% کے آس پاس علاقوں میں اس وقت جو طالبان ہے وہ مزاحمت کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد رد عمل میں ریئیکشن کے طور پر ہم نے دیکھا جب 1996 میں بھی اسی طرح کی کوشش کی گئی، جس کے بعد حکومت سازی کے دوران بھی اس طرح سے عام شہریوں پر زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی، جس کے بعد حالات جو ہے وہ آپے سے باہر ہونے لگے۔ اس ساری صورتحال کے بیچوں بیچ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے جموں کشمیر اور باقی معاملات اور دیگر حالات پر بھی بات چیت کی۔ پہلے آصف کے پاس چلتے ہیں اور اس کے بعد رد عمل میں جاننا چاہیں گے کہ جو بائیڈن نے کیا کچھ کہا۔ امریکی صدر کو سنتے ہیں اور اس کے بعد سیدھے نئی دہلی چلتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھی آصف رشید جڑے ہیں۔ پہلے امریکی صدر کو سنتے ہیں، انہوں نے اس معاملات کے حوالے سے، کیونکہ امریکی فوجوں کا انخلا تھا اور ایک رائے اور ہم آہنگی بنانے کی کوشش تھی کہ شاید اب کی بار امریکی دوبارہ وارد کابل ہو جائیں گے، ہم فوجوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ہو جائیں یا نہ ہو جائیں، اور فوجی انخلا کے بیچ میں زوردار دھماکے کے بعد بین الاقوامی سطح پر ایک تاثر گیا ہے کہ افغانستان میں اس حکومت سازی کے بیچ میں اور مزاحمت اور کشمکش کے بیچوں بیچ میں اس طرح سے قیمتی جانوں کا تلف ہونا بہت بڑا معاملہ ہے۔ پہلے جو بائیڈن کو سنتے ہیں، امریکی صدر نے موجودہ صورتحال جو کابل افغانستان میں بنی ہے کیا کچھ کہا، اس کے بعد آصف رشید سے جڑتے ہیں۔ We've been made aware by our intelligence community that the ISIS-K, an arch enemy, the Taliban, people who were freed when both those prisons were opened, has been planning a complex set of attacks on the United States personnel and others. This is why, from the outset, I've repeatedly said this mission was extraordinarily dangerous, and why I've been so determined to limit the duration of this mission. As General McKenzie said, this is why our mission was designed, this is the way it was designed to operate under severe stress and attack. We've known that from the beginning. And as I've been in constant contact with our senior military leaders, and I mean constant, round the clock, and our commanders on the ground throughout the day,
They made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. And that's what I've ordered them to do. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans. We will get our Afghan allies. And our mission will go on. America will not be intimidated. And I have the utmost confidence in our brave service members who continue to execute this mission with courage and honor to save lives and get Americans, our partners, our Afghan allies out of Afghanistan. By and large, and I've asked the same question to military on the ground, whether or not it's a useful exercise, no one trusts them. We're just counting on their self-interest to continue to generate their activities. And it's in their self-interest that we leave when we said, and that we get as many people out as we can. Like I said, even in the midst of everything happened today, over 7,000 people we've gotten out, over 5,000 Americans. So it's not a matter of trust, it's a matter of mutual self-interest. And but there is no evidence thus far that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened today, both in front of the hotel and what is expected to continue for beyond today. अमेरिकी सदर जो बिडेन जो है जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, खुसूसन अफ़गानिस्तान में तालिबान की मज़ाहमत के बाद और बाकी मामलात पर बातचीत कर रहे थे। वज़ीर कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी तलब किया जा रहा है जिसमें तमाम दुनिया भर के जो मामलात है उस पर बातचीत की जाएगी और मरकज़ जो होगा वो अफ़गानिस्तान में। और एक बड़ा सवाल कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान के जो जवान थे जब वो मज़ाहमत कर रहे थे तब तो किसी किस्म की तशवीश भी नहीं थी और इस तरह के ब्लास्ट्स नहीं हुए। आखिर क्या कुछ मामला है और किस तरह से इन ब्लास्ट्स के बाद अफ़गानिस्तान की अगली तस्वीर होगी, क्योंकि कहा जाता था कि अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट और मुतअद्दिद इलाक़ों में जब तालिबान ने दोबारा अपनी पोजीशन बहाल की थी और उसके बाद कोई भी धमाका नहीं हुआ, हिलाकतें बिल्कुल न होने के बराबर हुई, लेकिन उसके बाद जाते जाते ये किस तरह के मामलात पेश आने लगे। आसिफ रशीद के साथ नई दिल्ली चलते हैं और आसिफ मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में। ये जो अफ़गानिस्तान में तालिबान जब मज़ाहमत कर रहा था तो हमने देखा कि कोई इस तरह की कार्रवाई हमने नहीं देखी, लेकिन जब कब्ज़ा या अपनी पोजीशन संभालने के बाद इस तरह के धमाके होने लगे, क्या हम माने आइंदा 3 महीने बड़े क्रूशल होंगे और जो भी लोग इस अमल को पसंद नहीं करेंगे वो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे? बिल्कुल तजम्मुल, आप देखेंगे तो इस वक्त जो तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल एक तरफ से संभाला है, सिर्फ एयरपोर्ट का अंदर और या बाहर का इलाका है वो हिस्सा जहां पर इवैक्यूएशन का प्रोसेस भी चल रहा है, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस के कंट्रोल में चीजें हैं। इन सब के बीच में इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि जरूर आईएसआईएस जिसकी बहुत पुरानी दुश्मनी रही है, काबुल तक पहुंचने के लिए तालिबान को हमेशा से रोकने के लिए कोशिशें उसने की हैं, तो पिछले 15-20 सालों से जो कोशिश थी उसका भी एक ये नतीजा माना जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो दुश्मनी अब तक खुलकर सामने आती रही है उसकी मुखालफत और उन सब के बीच में धमाके करना, एक तो वो इन सब के बीच में अफगानी शहरी या गैर मुल्की जो लोग हैं वो इसका निशाना बने हैं। दूसरी तरफ ये जो धमाका हुआ है, चूंकि कल सुबह से हम देख रहे थे बरतानिया समेत पेंटागन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था और साफ किया गया था कि दिन भर कुछ इस तरह की सरगर्मियां हो सकती हैं, भीड़ काफी ज्यादा थी एयरपोर्ट पर, इसलिए उन सभी शहरियों को बचने की जरूरत है जिनको टारगेट किया जा सकता है आईएसआईएस समेत या बाकी जो इस वक्त सरगर्म ग्रुप्स हैं। मगर आईएसआईएस ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है
और जरूर ये धमाका करना। और उसके बाद जो कुछ बयान सामने आया, एक वीडियो बयान भी जारी किया गया आईएसआईएस के तर्जुमान की तरफ से, जिसमें इस बात की वजाहत की गई कि उनकी तरफ से एक के बाद दीगर कुल मिलाकर 2 धमाके किए गए अबे गेट पर और उसके बाद बरून होटल के करीब। तो 100 के करीब लोगों की जान लेने के बाद ये भी तालिबान के साथ जो पुरानी दुश्मनी थी वो आज भी बरकरार है, ये तो साफ हो गया है इस धमाके से। लेकिन ये खदशात इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम आपको अपने देखने वालों को खबर बता रहे हैं तो एक बार फिर अमेरिका की तरफ से जो सफारतखाना अफगानिस्तान के अंदर काम करता था या जो अमेरिकन शहरियों को निकालने के लिए कोशिशें कर रहा है, वहां से एक और एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि अब कार ब्लास्ट भी हो सकता है, कार के जरिए भी बम धमाके किए जा सकते हैं। पहले जो खुदकुश हमला हुआ उसमें भी सीधे फोर्सेज और गैर मुल्की शहरियों को निशाना बनाया गया। आसिफ, जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पे तासुर गया और अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब किया जा रहा है, इसमें क्या हमदर्दी तालिबान को हासिल हो सकती है और दाइश या आईएसआईएस के जो भी इस तरह के शरपसंद अनासर है उनके खिलाफ एक मुत्तहिदा फोर्स बनाया जाएगा और उसके बाद उनसे लड़ा जाएगा, या इसमें तालिबान का भी नुकसान होगा? देखिए, इसमें सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका ने लगभग रात ही को साफ कर दिया है। जब मीटिंग हुई थी तो उसके बाद जो बाइडेन की तरफ से भी जब खिताब किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि अगर मजीद जरूरत पड़ी तो फोर्सेस को और भी काबुल भेजा जा सकता है या उन इलाकों के अंदर जहां पर नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। ये ड्रोन के जरिए भी गुज़श्ता दिनों जो बयान जारी किया गया तो कहा गया कि ड्रोन के जरिए वो इस तरह की कोशिशें जारी रख सकता है, मगर आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल जानना बहुत जरूरी है। इसलिए पीर का हमें इंतजार करना होगा, चूंकि पीर भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे जो इजलास होने जा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का, एंटोनियो गुतेरेस की तरफ से बुलाया गया है, उसमें सबकी राय ली जाएगी। और अगर एकतरफा राय बनती है जिसमें कम से कम ये साफ हो पाएगा कि अगर 31 या 30 अगस्त के बाद, चूंकि 30 तारीख इसलिए रखी गई है, 30 और 31 की रात को ही वो डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी जिसके मुताबिक अमेरिकन फोर्सेस को वहां से निकलना है। तो आगे का जो लाएअमल है वो काफी हद तक इस इजलास पर डिपेंड करेगा और आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल यहाँ से भी काफी हद तक सामने आ सकता है। मगर जो रात को हुआ है उस पे किसी भी कीमत पे उसको कोई मुल्क एंडोर्स करने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ खड़ा होने के लिए, क्योंकि तालिबान ने पहले ही किनारा इससे कर लिया है, आईएसआईएस को जिम्मेदार ठहराया था और थोड़ी देर बाद आईएसआईएस का बयान सामने आ जाता है, जिसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर बरतानिया की तरफ से, रूस की तरफ से और दीगर कई ममालिक की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किए गए। यहाँ तक कि भारत की तरफ से भी अब से थोड़ी देर पहले कहा गया कि इस तरह के दहशतगर्दाना हमले या कार्रवाइयां, वो जो पिछले दिनों हमारी कोशिश थी सभी को एक प्लेटफॉर्म लाने की और टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होने की, उस कोशिश को एक धचका लगा है। तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी आखिरी सवाल होगा कि जो आईएसआईएस या दाइश की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इससे कहीं ना कहीं जो है जो कुछ अप्रहेंशंस या खदशात थे कि शायद तालिबान फोर्सेस जो हैं वो इस तरह की कार्रवाई में मुलविस हो सकते हैं, उन्हें बेल आउट फिलहाल किया गया है। लेकिन जो मुतालबात इनके हैं वो तालिबान और दाइश के बीच में दूरियों का जो फासला जो है वो किस नवियत का है? क्योंकि अफगानिस्तान में जब तालिबान ने तकरीबन बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पर अब हुकूमत साजी तकरीबन संभाली थी, तो दूरियां कहाँ पर है, नजरियाती इख्तलाफ कहाँ पर है दाइश और तालिबान का? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो लड़ाई शुरू से रही है, जरूर इनमें लोग अलग अलग हों, लेकिन आज जो इस्लामी अमारात या जो नाम तब्दील किया गया अफगानिस्तान का और तालिबान की तरफ से कहा गया कि शरई निज़ाम लागू करके उनकी तरफ से अलग किस्म का एक जो इस्लामिक स्टेट है वो बनाया जाएगा। इससे पहले 2014 और 15 सितंबर का महीना था जब पहली बार 4 से 5 अजला ऐसे थे जिन पर दाइश की तरफ से कब्जा किया, तो उनकी तरफ से पहला ऐलान किया गया कि वो मुकम्मल तौर पर खिलाफत चाहते हैं। यहाँ पर वो उसी तरह का निज़ाम जो है वो करना चाहते हैं जो माजी में रहा है, जो तारीख बताती है हमें, तो वो उन पैरामीटर्स को लेकर कहीं ना कहीं उस नक्शा कदम पर चल रहे थे। मगर आज ये फर्क सिर्फ इतना है कि अफगानिस्तान का नाम थोड़ा सा तब्दील करके, मगर निज़ाम में कोई ज्यादा जो है जब आप अमली तौर पर देखेंगे तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन खिलाफत की हमेशा से मांग रही है, मगर अपने तरीके से उसको लागू करेगा। और करेगा कौन? जो अलकायदा और दाइश पहले कुछ इलाकों के अंदर मुत्तहिद होकर सरगर्म नजर आए तालिबान के खिलाफ। आज के वक्त में चूंकि बहुत कम वक्त हुआ, 6 सालों के दौरान ये कामयाबी को दाइश को नहीं मिली, लेकिन जब तालिबान ने कब्जा कर लिया है तो वो खिलाफत के उन्हीं उसूलों पर, उन्हीं कवायद ज़वाबित पर आगे चल रहा है। और आज एक बार फिर उनकी तरफ से साफ किया गया है कि वो उसी निज़ाम को मजीद आगे ले जाना चाह रहे हैं और एक बार फिर अपनी दुश्मनी उनने वाज़ेह तौर पर जाहिर कर दी है तालिबान के साथ, ये धमाके करके, जिसकी जिम्मेदारी भी ऑफिशियली उनकी तरफ से ले ली गई है। और एक और अपडेट यहाँ पर बताते चले, कुल मिलाकर अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है, 90 प्लस भी ये तादाद जा सकती है। 15 अमेरिकी शहरी जख्मी हुए हैं और 13 जो स्पेशल फोर्सेज के एहलकार हैं उनकी मौत हुई है और 143 से ज्यादा जो कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज के बयानात हैं और जो मकामी मीडिया बता रहा है अफगानिस्तान का, 143 के करीब आसपास जो लोग हैं वो इन 2 धमाकों में जख्मी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ही आसिफ रशीद नई दिल्ली से बराह रास्त बात कर रहे थे।
मरने वालों की तादाद इस धमाके में कितनी है? 90 के करीब पहुंच गई, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ऑफिशियल जो है उनकी तादाद जो है वो 13 के करीब है और 1 दर्जन से जायद, और 60 जो है वो अफगानिस्तान के हैं और 100 से जायद ऐसे अफराद हैं जो इंतहाई मजरूब हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कमबैक के बाद, वापसी के बाद इस तरह से पहला धमाका हुआ और जिस वक्त अफगानिस्तान में फौजी इनखला और मुख्तलिफ ममालिक के नेटो फोर्सेज और अमेरिकी फोर्सेज वापस जा रहे थे, इस दौरान ये धमाका हुआ और अब अक़वाम मुत्तहिदा का जो मेंबर काउंसिल है उनका इजलास तलब किया गया है भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे, और उसमें ये साफ होगा कि मुख्तलिफ ममालिक की जो हिमायत होगी वो किसके हक़ में होगी और जो ISIS या दाइश की जो तंजीमें हैं और उनका जो नज़रिया है वो अफगानिस्तान में जो तालिबान का नज़रिया है उसे कहीं पर मेल नहीं खा रहा है। मुकम्मल तौर पर वो खिलाफत चाहते हैं और जिसका रद्द-अमल जो है अब आगे जो है बड़ा अगले 3 महीने बड़े क्रूशल होंगे अफगानिस्तान में। या तो बड़ी तादाद में दोबारा गैर मुल्की फौजी आएंगे और उसके बाद कमांड संभालेंगे, या तालिबान के हक में वो एक तरफ खड़े हो सकते हैं। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर। अब वापसी करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर का वाहिद लाइफलाइन कौमी शाहरा यानी श्रीनगर जम्मू का कौमी शाहरा, बड़ी खबर आ रही है। कौमी शाहरा इस वक्त ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामबन के करीब बीती शाम में एक वाकया पेश आने के बाद मकामी लोग सेखपा है, एहतजाज कर रहे हैं, कार्रवाई का लगातार मुतालबा कर रहे हैं और रामबन और उसके आसपास में मकामी शहरियों, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं और सिट इन धरना में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि जिस शख्स ने, जिस वर्दी पोश एहलकार ने हमारे खिलाफ हद तक आमेज सलूक रवा रखा और बदतमीजी की, मारपीट की, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सीधे चलते हैं रामबन। हमारे साथ हमारे साथी नदीम इकबाल कटो जुड़ चुके हैं। नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में श्रीनगर स्टूडियो से। हमें बताइएगा ताज़ा तरीन तफसीलात, रामबन से ट्रैफिक क्या बहाल हो गया और डिमांड जो है उस पर क्या जिला प्रशासन या इंतजामिया ने कोई अभी तक इकदाम उठाए? जी बिल्कुल सही तजर्बा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस वक्त जिस मकाम पर मैं खड़ा हूं ये नेशनल हाईवे का मकाम है, जहां पर हम देख रहे हैं कि लगभग 9:30 बजे से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। जी जी, ABVP की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, 3 दिन की स्ट्राइक पे हमने देखा कि वो गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन के अहाते में थे, जिनकी डिमांड ये थी कि जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में लगाया जा रहा है वो वहां पे इंस्टॉल न किया जाए, उसे दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, क्योंकि स्कूल के पास पहले ही जमीन की कमी है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही 3 दिन का वक्फा मुकम्मल हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पुलिस स्टेशन रामबन के जो SHO है अलॉन्ग विद अपने जो वहां पे स्पॉट था उसके साथ वहां पहुंचे और वहां पे उन्होंने जो है डिटेन किया जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स हैं, उन्हें अरेस्ट किया वहां से। उसके बाद जब थाने लाया गया है डिटेन करके, तो उन पर कहीं न कहीं लाठी चार्ज हुआ है, जो उनकी हालत है, उनकी मारपीट हुई है, कहीं न कहीं उन्हें जख्म लगे हैं। जो तस्वीरें हम इस पर देखते हैं सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसी को लेकर आज हमने देखा, क्योंकि कल शाम का ये वाकया, लेकिन आज सुबह व्यापार मंडल ने भी इसे सपोर्ट किया और व्यापार मंडल और ABVP और मकामी लोग भी इस प्रोटेस्ट में बराबर का हिस्सा ले रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर ABVP के लीडर्स पे लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उसके साथ में एक फीमेल स्टूडेंट जिसकी मारपीट हुई है, उनकी जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूरा वाकया क्या है, पूरा मसला क्या है, ABVP के लीडर हमारे साथ है, हम इनसे ही बात करेंगे, इनसे ही जानेंगे कि पूरा वाकया क्या है। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है, क्या वाकया है जिसको लेकर आज आप हाईवे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, जैसे कि आपको पता ही होगा कि पिछले 3 दिन से जो विद्यार्थी परिषद है लगातार प्रदर्शन कर रही थी हाई सेकेंडरी स्कूल में ऑक्सीजन प्लांट को लेके। तो ऑक्सीजन प्लांट के विद्यार्थी परिषद ऑक्सीजन प्लांट के समर्थन में बिल्कुल है, तो वहाँ पे अपना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। उसमें क्या होता है कि तहसीलदार साहब रामबन और SHO साहब रामबन वहाँ पे आते, उसके बाद हमारे जो कार्यकर्ता जिला संयोजक तरुण देव सिंह जी थे उनको, और पवन राठौर जी जिला के संगठन मंत्री थे, उनको उन्होंने इस प्रकार जो मार के उन्होंने गुंडे की तरफ जैसे कोई पता नहीं क्या अपराध किया था, इस प्रकार उन्हें थाने ले गए। उसके बाद जो हमारी छात्रा कार्यकर्ता थी, छात्रा कार्यकर्ताओं से भी क्या बोलते हैं SHO रामबन ने इस प्रकार से फोन छीना, उनके साथ हाथापाई की। इवन की SHO रामबन को इतना भी ज्ञान नहीं था कि किसी छात्रा को अरेस्ट करने के लिए उनको
लेडीज कांस्टेबल को साथ लेके जाना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने अंदर रखा, फिर बाद में हमारा प्रदर्शन दोबारा जारी रहा। ये अब हाईवे बंद है, हाईवे खोलने के लिए आपकी क्या डिमांड है कि हाईवे खुलेगा लेकिन क्या होना चाहिए? हमारी दो, जैसे अब प्रशासन है वो गुमराह करे कि ये लोग क्या करें कि ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल नहीं करने दे रहे। ये सरासर गलत आरोप है। एबीपी ऑक्सीजन प्लांट का बिल्कुल समर्थन करती है, ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल लगना चाहिए। हमारी अब यही मांग है कि जो एसएचओ साहब है, जिस प्रकार से उन्होंने गुंडागर्दी की हुई है, उनका सस्पेंशन होना चाहिए, और उनके साथ एक जो सब इंस्पेक्टर है उनका भी सस्पेंशन होना चाहिए। हमारी दो मांगे, और जो हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनको उन्होंने अरेस्ट किया, उन लोगों से बातचीत कर रहे थे जो आज इस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे, और इनकी एक डिमांड है कि जो पुलिस की कार्रवाई है अब कानूनी शिकंजे में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि एहतजाज जो था वो जनरल पब्लिक की डिमांड को लेकर था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की गई है, जिस पर मकामी लोग काफ़ी सेकपा है। तस्वीरें आपके हवाले। और रामबन में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जो है फिलहाल उसकी नकल हमल जो है वो मुतासर हो चुकी है। और नाज़रीन, अब गांदरबल से बड़ी अहम खबर आ रही है। गांदरबल में जो ज़वज़िला टनल का जो कामकाज है वो बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में कारगिल, लद्दाख, नोबरा और मुतअद्दिद इलाकों में प्रोजेक्ट हाथ में लेने के बाद उसे मुकम्मल करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। हालांकि बीते शाम में एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐलान किया जिसमें SDM जो है वो अपने अपने हद इख्तियार में, अपने दायरे इख्तियार के मुताबिक अपने अपने हदूद में अब इन कामों को भी खुद देखेंगे। ज़वज़िला टनल पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस बात की जानकारी मुतल्लिका एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर व दीगर अफसरान ने दी। कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर जिला गांदरबल की तरक्याती कमिश्नर भी मौजूद थे। Get completed. ED NHIDC would brief you on the same. Please, I'll cover it. This is the Zozila project, which has got about 18 kilometers of a road structure and 14 kilometers of a tunnel. We are standing in front of the tunnel. You can see the portal right behind you. So, as far as the road work is concerned, we already completed about 11 to 12% of the road work, which has got a large number of bridges to come up, a large number of avalanche protection structures coming up. And as far as tunnels are concerned, there are two small tunnels in this approach road, in which already about, you can say about... आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त। नाजरीन, अब रुख करते हैं शहरी मसाइल का। नाजरीन, शहर श्रीनगर के बागी महताब गुलशन नगर इलाके में मकामी लोगों ने आज सुबह सुबह गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि इलाके में सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है, लेकिन मकामी लोग और मकामी अफसरान के पास जाकर भी अभी तक पैच वर्क या इस पे मैक्टमाइजेशन का काम शुरू नहीं किया। ये अंदरून रास्ता है जो आपको अहमद अस्पताल के बिल्कुल अपोजिट बाग महताब गुलशन नगर की तरफ रास्ता जाता है। खड़े इतने ज़्यादा हैं, और इस बीच में मकामी शहरियों ने फौरी तौर पर RNB और मुतल्लिका डिपार्टमेंट से मुदाखलत की अपील की है, क्योंकि इलाके में बस्ती में लोगों की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है, लेकिन सड़कों की हालत बेहतर करना शायद सरकार भूल गई है। अगर इस इलाके की हालत आप देखोगे, आप इस सड़कों की हालत देखो, ये तारे देखो, पोल्स देखो। अगर म्यूनसिपलिटी वालों ने यहाँ पर लाइट्स लगाए हैं, वो लगाए हैं उन्होंने सिर्फ बागी महताब तक, और इस गुलशन नगर को उन्होंने इग्नोर किया है। जी गवर्नमेंट से मुझे यही अपील है कि जो हमारी प्रॉब्लम, सड़कों की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, पोलों की प्रॉब्लम है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो इसमें म्यूनसिपलिटी भी इन्वॉल्व है, इसमें RNB भी इन्वॉल्व है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। मतलब जितने भी महकम हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। हम अलजी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके वो हमारे गुलशन नगर बागी महताब का इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम मकामी शहरियों का आज एहतजाज। नाज़रीन, अब चलते हैं बड़े अहम मौजू की तरफ। शहर श्रीनगर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मैंडेट में सिर्फ तामीराती काम ही नहीं था, परमिशंस बनाना ही नहीं था, सियासत ही नहीं थी, बल्कि शहरियों को बुनियादी हकूक देना था, क्योंकि शहरी इसके लिए बाकायदा तौर पर फीस अदा करते हैं। तस्वीरें आपके हवाले। शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में, जिनमें छानापोरा, बागी महताब, रावलपोरा, इखराजपोरा, शहर श्रीनगर के सिविल लाइन्स एरिया, पाइन एरिया और उसके बाद डाउनटाउन के मुतअद्दिद इलाकों में कुत्तों ने हड़बूंग मचा रखी है, और कोई भी अमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इन कुत्तों की हड़बूंग से शायद उन्हें जूं तक नहीं रेंगी है। मुकम्मल तौर पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कई बार दावे किए कि शहर को इन कुत्तों से निजात दिलाने के लिए मौसर तौर पर इकदाम उठाए जाएंगे। बाकायदा तौर पर श्रीनगर के आलूची बाग के करीब एक अस्पताल का भी
तामीर मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद कुछ मामला उठाए जा सकते थे। और पॉलीथीन की रोक पर अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपने तरफ से बैनर अवेजा कर रखे हैं। कूड़ा कचरा मुकम्मल तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में है। हालांकि कोशिश की जा रही इसको उठाने की, अमला भी है, लेकिन शायद मैन पावर की बड़ी कमी है। और इस मैन पावर की कमी के साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को फिलहाल परमिशन के मसाइल और सियासत से थोड़ा सा बालातर होकर खुद उठना होगा और शहर के इलाकों का दौरा करना होगा। सीधे चलते अपने साथी सैयद इरफान के पास। इरफान, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में। मुझे बताइएगा कि इन इलाकों में मकामी लोग जो हैं वो किन मुश्किलात से हैं, जब एक तरफ कुत्तों की बड़ी तादाद बिल्कुल आसपास में मौजूद हैं, दूसरी तरफ कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा है। आखिर लोग किससे फरियाद करें? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में लोगों की आरा इन मसाइल के बाद क्या बदल गई हैं? देखिए सैयद तजम्मुल, अगर मैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करूं तो ज़मीनी स्तर पर वो लोग काम तो कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि वहाँ मैन पावर की किल्लत है। मैन पावर अगर ग्राउंड पर होता तो जाहिर सी बात है जो मुश्किलात से लोग जुझल रहे हैं वो मुश्किलात उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर सवाल खड़े हो जाते हैं। शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए बाकी प्रोजेक्ट्स जो है अमलाए जा रहे हैं, मगर सबसे पहले अगर स्मार्ट सिटी को लेकर बात करें तो वो स्मार्टनेस है शहर के सड़कों की साफ सफाई, गार्बेज और इसके साथ साथ डॉग मिनेंस जो काफी ज्यादा इस वक्त फैला हुआ है। आप देखिए रामबाग, नटीपोरा, छानापोरा, इवन इनफैक्ट बागी माताब से लेकर लाल चौक या शहीदगंज वाकई के इलाके में बात करूंगा, लास्ट ईयर पर वहां पर हमने देखा वहां पर एक डॉग बाइट जो है 5 साल बच्ची जो है उसकी शिकार हो गई। यानी कितना ज्यादा खौफ इन कुत्तों ने फैलाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर में जो गार्बेज है, डस्टबिन को लेकर जो प्लानिंग है वो बहुत कमजोर है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि छानापुरा इलाके के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे बात करें, वहां पर गार्बेज इतना बिखरा पड़ा हुआ है, वहां पर कोई प्लानिंग नहीं है कि ताकि उसको साफ शफाफ तरीके से उसको वहां से शिफ्ट किया जाए। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं हबचिनार को लेकर, हबचिनार में भी हम देख रहे हैं कि कई सारे डस्टबिन लगाए गए हैं जो कि खस्त हालत में हैं। अब उस कूड़े कचरे में कुत्तों ने अपना बसेरा कर लिया है। यानी आजकल हम देखते हैं स्मार्टनेस की बड़ी बड़ी बातें जो है जमीनी स्तर पर जो है बताई जाती है, मगर उसे अमलाया कितना जा रहा है। सब लोग आखिरकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि इकदाम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए फीस भी देते हैं, ऊपर से आजकल आप देखिए म्युनिसिपैलिटी ने जो वैन्स खड़ी की है, पर माह जो है महीना 200 रुपए घर वालों से फीस अदायगी ली जाती है, मगर इसके बावजूद अगर देखा जाए फिर ये स्मार्टनेस जो है वो ओवरलोडेड है या उसे कहते हैं इग्नोरेंस। ये दो टर्म्स में इस्तेमाल करना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर के हसास इलाकों से इस वक्त लगातार यही खबरें आ रही हैं कि गार्बेज जो है सड़कों पर फेंका जा रहा है, उसके लिए डंपिंग जोन्स, डंपिंग साइट्स कहां हैं? इरफान, जब आप गार्बेज को देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो आपका आलूची बाग बंड है टैंकपोरा की तरफ जाता है, और जिस वक्त आप वहां से गुजरते हैं तो इतनी ज्यादा मुश्किलात एक आम शहरी को होंगे। हालांकि वहां पर कोशिश की गई थी उस डस्टबिन को बहुत जल्द खत्म करने की, निकालने की, लेकिन डस्टबिन का जो इस वक्त साइट हमने देखा वो बड़ी खतरनाक जगह है, और जहां पर डस्टबिन है वहां पर कुत्तों की हड़बोंक है। तो इसमें क्या शिफ्टिंग का कोई प्रपोजल है अभी? देखिए प्रपोजल की अगर बात करें तो कितनी बारी आपने भी खबर की और कितनी बारी ये खबर जो है अवाम के साथ साथ हुकाम तक भी पहुंची है। नजर सबकी है, मगर अगर देखा जाए उसको जमीनी स्तर पर अमलाया नहीं जा रहा है। यानी एक साइड अगर देखा जाए बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी पर, कि कह सकते हैं कि वहां लोग बोल रहे हैं कि करप्शन का इदारा बन चुका है, अब परमिशन को लेकर बात चल रही है, या बाकी चीजों पे देखा जाए सवाल खड़े हो रहे हैं। मगर श्रीनगर के साफ शफाफ इलाका कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर आप मुझे बताइए कुत्तों की तादाद नहीं है, गार्बेज जो है सड़कों पर बिखरा पड़ा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, वक्त की कमी की वजह से आपकी इस बातचीत को हम मुसलसल नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले बुलेटिन में आपसे इस खबर पे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों जिनमें छानापोरा, नटीपोरा, बागी मेहताब, रावलपोरा, आलूची बाग, रैनाबारी, सिविल लाइन्स के इलाके, कुत्तों की हड़बोंग, पॉलिथीन का बेतहाशा इस्तेमाल, कूड़े कचरे के ढेर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और नाज़रीन, बीती शाम में जो मेडिकल बुलेटिन आया है उसमें मुल्क में 46,000 से जायद दोबारा केसेस जो है पॉजिटिव आने लगे और 607 अफराद जो है मुसलसल कोविड-19 के शिकार होने लगे। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि मार्केट में घर से बाहर आते वक्त मुसलसल तौर पर आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और समाजी दूरियों को बरकरार रखने में जो गाइडलाइंस है उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अल्लाह हाफिज।